Good morning students, welcome back to your online classes. So today we're going to start with a very new practice set, that is 4.4 and 4.5. As in the earlier video we have completed practice set 4.3. So before proceeding towards practice set 4.4, let's study theorem on equal ratios. In short, theorem on equal ratios says that if a upon b a upon b is equals to c upon d, the two fractions, that is a upon b and c upon d, are equal, then theorem on equal ratios says that a upon b is equals to c upon d will be equals to the addition of numerator upon the addition of denominator. This property is known as a theorem on equal ratios. In this theorem on equal ratios, the given operation is a plus b upon b plus g, but we can apply a minus c upon b minus g also. एडिशन विद सब्सट्रैक्शन हम लोग दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं. इक्वल रेशियोज़ में क्या होता है, जब रेशियोज़ इक्वल होते हैं तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एडिशन हो, बट अगर एडिशन हो रहा है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी एडिशन ही होगा. बट वी कैन डू subtraction also. Okay, later on we're going to know why I am saying this all the things, because in 4.5 one sum is there related to theorem on equal ratios. So in that we had applied this theorem and in that we have done subtraction. Okay, so let's start with 4.4. So here the first question is, fill in the blanks of the following. First, x upon 7 is equals to y upon 3 is equals to 3x plus 5y upon dash is equals to 7x minus 9y upon dash. So here in this first question, x upon 7 is equals to y upon 3. These two functions are equal. So these two fractions are equal. Now the third fraction says that 3x plus 5y means x के साथ 3x ऐड हुआ है प्लस वाई के साथ 5y ऐड हुआ है. ओके, सो अपॉन व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर, 7 एज इट इज़ रहेगा. x के साथ कौन सा टर्म आ जाएगा, 3, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर x के साथ 3 को मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है x वाला उसके साथ डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा. एंड सेम यहाँ y के साथ 5 है तो इसका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा. सो यह 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3. एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर एडिशन है, इससे नीचे भी एडिशन होगा, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट आर थियरम ऑन इक्वल रेशियोज. So now 3 7s are 21, 5 3s are 15. So 21 plus 15 is equals to 36. So we have 3x plus 5y upon 21 plus 15 is equals to 3x plus 5y upon 36. Now second, x upon 7 is equals to y upon 3, which is equivalent to 7x minus 9y upon. So here x is getting multiplied with 7. So here also 7 multiplied by 7 will going to multiply. ऊपर अभी सब्सट्रैक्शन हो रहा है, सी, क्योंकि इक्वल थियरम ऑन इक्वल रेशियोज है, हम ऐड भी कर सकते हैं, हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ओके, दिस टू ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन थियरम ऑन इक्वल रेशियोज. सो माइनस 9y अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय अगेन 7, बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड x अलॉन्ग विथ 7. सो जो 7 का x का डिनोमिनेटर रहेगा 7, उससे भी हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे. सेम 9 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 9 बिकॉज 3 इज ऑलरेडी देयर एंड इन न्यूमरेटर वी हैड मल्टीप्लाइड ऑलरेडी विथ there is 9 present over there, so we have to multiply 9 along with 3. Theorem on equal ratios. So 7x minus 9y upon 7 7s are 49 minus 9 3s are 27, which is equals to 7x minus 9y. After subtraction we are going to get 22. So we have x upon 7 is equals to y upon 3 is equals to 3x plus 5y upon 36, which is equals to 7x minus 9y upon 22. Okay, now second question, same, a upon 3 is equals to b upon 4 is equals to c upon 7, which is equals to a minus 2b plus 3c. So a के साथ वाला जो टर्म था वो एज इट इज़ रहेगा, सो 3 विल रिमेन एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई बाय b. सो व्हाट इज़ b, b के साथ कौन सा फंक्शन है 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एज इट इज़ 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय c के साथ जो फंक्शन था क्या था 7, तो 7. So this is nothing but our theorem on equal ratios. So now a minus 2b plus 3c will remain as it is upon 3 minus 2 4s are 8 plus 3 7 are 21 equals to a minus 2b plus 3c upon 3 minus 8 is minus 5 plus 21 is 16. Now a upon 3 is equals to b upon 4 is equals to c upon 7, which is equals to, as here it is a minus 2b, sorry, this is a solution for this term. Now second is
a upon 3 is equals to b upon 4 is equals to 6 c upon 7. So now what we're going to have here, we have only 6 minus 8 plus 14. We don't have numerator. So let's see how can we find numerator. So a upon 3 is equals to b upon 4 is equals to c upon 7 equals to, अभी वो जो 6 था पहला वाला टर्म क्या था हम लोग का 6 माइनस 8 प्लस 14. तो 6 को हम लोगों ने ब्रेकआउट किए 2 इंटू 3 में, 8 को 2 इंटू 4 में एंड 14 को 2 इंटू 7 में, राइट. तो 3 4 7 इज़ नथिंग बट आर ये फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है. एंड देन अलॉन्ग विद दैट वॉट एवर टर्म इज़ देयर, सो हम लोग उसको ऊपर मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे. तो 2a माइनस 2b प्लस 2c. सो दिस इज बेस्ड ऑन थियरम ऑन इक्वल रेशियोज. सो वी हैव 2a माइनस 2b प्लस 2c अपॉन 6 माइनस 8 प्लस 14. वेरी इजी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. This is little same as 4.3 exercise. So let's see. 5m minus n is equals to 3m plus 4n. Find the values of the following expression. So here we have here we have one condition that 5m minus n is equals to 3m plus 4n, which is given information data. So therefore 5m will going to take like term nearby each other. So that is 5m, this is positive 3m, so it will be going to get on left hand side. So we'll get minus 3m equals to 4n minus n. So 5m minus 3m is 2m, 4n plus n is 5m. So now we have value of 2m is equals to 5n. अगर हम लोग यहाँ पर m by n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी हम लोग को m by n की वैल्यू 5/2, राइट. या यू कैन ऐड वन लाइन, यहाँ पर हम लोग एक लाइन ऐड कर सकते हैं, दैट m by n विल बी इक्वल्स टू 5/2. ओके. सो नाउ फर्स्ट कंडीशन इज m². यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला करूँगी, सेकेंड वन विल बी होमवर्क. सो m² अपॉन n² इज इक्वल्स टू 25. अभी यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, देखो m by n हम लोग को मिल गया है, राइट. अभी वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m² प्लस n² अपॉन m² माइनस n². सो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू मिली है हम लोग को उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, बिकॉज हम लोग को यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, स्क्वायर की. सो m² अपॉन n² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. नाउ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे इसके लिए, बिकॉज एक एडिशन एक सब्सट्रैक्शन है. सो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो m² प्लस n² अपॉन m² माइनस n² इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 4. So we have m² plus n² upon m² minus n² is equals to 29/21. So this is the value of m² plus n² upon m² minus n². Now second one will be homework. I have given over here, but if you will not get, you can ask me. Now question number 3. Solve if a y plus z is equals to b z plus x is equals to c x plus y, and out of a b c no two of them are equal, then show that this. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन ये दिया है, और ये क्यों कहा गया दैट ए बी सी में कोई भी दो इक्वल नहीं है, बिकॉज अगर ए बी सी में से कोई भी दो इक्वल होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. और कैंसिल हो गया तो फिर हम लोग का ये जो थियरम ये इक्वल रेशियोज़ पे नहीं आएगा. तो इट मीन्स दैट ए बी सी आर द नॉन ज़ीरो नंबर्स. ओके. So let's see here, no two of a b c are equal. So value of b minus c minus a जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या इक्वल नहीं है, तो हम लोग को क्या होगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, नॉन ज़ीरो टर्म्स रहेगी. सो a y plus z is equals to b z plus x is equals to c x plus y, given information. So now what we going to do, हम लोग सब डिनोमिनेटर से किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी से करते हैं. तो साइड में जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं. और हम लोग एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, इसका यूज़ करके ये लाना है. ओके. सो वी हैव ए वाई प्लस जेड अपॉन ए बी सी. सो वी आर डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी. सो ए वाई प्लस जेड अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू बी जेड प्लस एक्स अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी सी. सो यर ए गेट कैंसल, बी गेट कैंसल, सी गेट कैंसल. सो वॉट विल गोइंग टू गेट वाई प्लस जेड अपॉन बी सी, जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी, एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी. सो नाउ लेट y प्लस जेड अपॉन बी सी विल बी इक्वल्स टू जेड प्लस अपॉन ए सी. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको इक्वल्स टू के देते हैं, राइट. अब इसमें से कोई भी दो फंक्शंस को हम लोग लेते हैं और उसको इक्वलाइज करके एक ही वैल्यू निकालते हैं. तो लेट्स सी y प्लस जेड के इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी
इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ने ये लिए। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज अप्लाई करेंगे। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज में सब्सट्रैक्शन अप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम लोग काट सके और वैल्यू निकल सके, इसीलिए। सो एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, सो एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस प्लस माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिला, वाई माइनस जेड अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लिए थे, अभी कौन सा टर्म लेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे। वाई प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी फ्रॉम 1। अगेन व्हाट विल गोइंग टू डू हियर, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज में सब्सट्रैक्शन करेंगे, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन बी सी माइनस ए बी। देन विल गोइंग टू गेट वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन बी सी माइनस सी। सो वाई वाई गेट कैंसल, वी हैव जेड माइनस एक्स अपॉन बी सी माइनस सी। इक्वेशन नंबर 3। अभी थर्ड टर्म क्या बच गया हम लोग का, ये और ये, राइट। सो वी हैव जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन बी सी। सो व्हाट विल गोइंग टू डू, जेड प्लस एक्स माइनस वाई ऑफ माइनस ऑफ वाई प्लस जेड अपॉन ए सी माइनस बी सी। सो अगेन यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, नीचे जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर निकल रहा है, बस दैट्स इट। तो जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपॉन, इसमें से सी कॉमन है तो सी बाहर आ गया, ए माइनस बी। सो जेड कैंसिल, वी हैव एक्स माइनस वाई अपॉन सी ऑफ ए माइनस बी। इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम, और ये तीनों क्या थे जिसको भी हम लोगों ने यूज़ करके हम लोगों ने ये सब निकाले इक्वेशंस, तो वो क्या थे, ऑलरेडी वो इक्वल्स थे, राइट। सो इनकी जो इक्वेशन रिजल्टेंट वैल्यू जो आई हम लोग की की, वो भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। सो वॉट एवर इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम 2, 3 and 4 they are equal. So hence we have proved that from using this we have proved this equation are equal. Okay, now second sub question in that is, if x upon 3x minus y minus z is equals to y upon 3y minus z minus x is equals to z upon 3z minus x minus y, and x plus y plus z is not equal to 0, then show that the value of each of the ratio is equal to 1. अभी हम लोग को वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द रेशियो इज इक्वल्स टू 1 बताना है, मतलब इन सब का इक्वल, जो भी इक्वल में वैल्यू आएंगी हमारी वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब जो भी के है हम लोग का वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो अभी हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एडिशन हो रहा था, नीचे भी एडिशन होगा, फिर देन 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y, सब ब्रैकेट खुलेंगे, देन 3x 3x में से एक x गया, फिर देखो ध्यान से देखते हैं हम लोग, 3x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स सिंगल x, ओके, ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, 3y माइनस वाई 2y माइनस वाई 1y, राइट। 3y में से एक y गया, 2y बचा, 2y में से एक y गया, एक y बचा, प्लस 3z में से एक z गया, 2z में से एक z गया, सिंगल z, कैंसिल विल गेट k इक्वल्स टू 1, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड एक टर्म है पूरा, x प्लस वाई प्लस जेड पूरा एक टर्म है, सो वी कैन कैंसिल आउट दिस बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर k इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ before proceeding towards practice set 4.5, we have to know that what is continued proportion. For 4 quantities A, B and C और D are said to be in अगर हम लोग कोई भी 4 प्रॉपर्टी 4 के 5, 6, 7 कितनी भी ले सकते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, तो वी आर अज्यूमिंग ईयर A, B and C, D. अगर ये कंटिन्यूड है तो कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है, A अपॉन B, फिर B से शुरू होगा B अपॉन C, फिर C से शुरू होगा C अपॉन D, राइट। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, अगर हम लोग 2 फ्रैक्शंस को कंसिडर करते हैं तो ये b इधर जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ac, सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac या फिर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू bd, ऐसा बन सकता है। तो इसमें ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, ओके, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि b इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ac या c स्क्वायर, c इज़ द ज्योमेट्रिक, सो वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट दिस दैट व्हाट इज़ दिस ज्योमेट्रिक मीन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 4.5. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, which number should be subtracted from 12, 16 and 21 so that the resultant number are in continued proportion. ऐसे कौन से नंबर है जो इसे सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को जो रिजल्टेंट में मिलेगा नंबर जो भी वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में रहेगा. सो लेट द नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड बी x. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है इसके अंदर एक सेम रहेगा ना नंबर, तो वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कौन सा ऐसा नंबर रहेगा जो इसको कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनाएगा, तो वो नंबर को हम x ले लेते हैं. तो 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कैसे लिख सकते हैं, 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स. सो नाउ अगेन व्हाट विल गोइंग टू अप्लाई हियर, बाय डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो
बाय डिविडेंडो, नॉट फ्रॉम कंपोनेंडो। डिविडेंडो से क्यों करेंगे, बिकॉज अगर हम लोग डिविडेंडो इसमें अप्लाई करते हैं तो हम लोग को किसकी वैल्यू हम लोग को निकालने की, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसीलिए हम लोग कोई चीज़ अगर प्रूफ करनी होती है तो हम कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, कोई कंडीशन के हिसाब से रहता है। अगर अभी यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू निकालना है, तो खाली माइनस हो सकता है तो माइनस करो, बिकॉज सब्सट्रैक्शन से ज़्यादा हम लोग को वैल्यूज़ मिल सकती है। तो 12 माइनस एक्स माइनस 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, 16 माइनस एक्स माइनस 21 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। तो लेट्स सी 12 माइनस एक्स माइनस 16 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स माइनस 21 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। तो 12 माइनस 16 कितना होता है, -4 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, सो वी हैव अपॉन 16 माइनस एक्स। हियर 16 माइनस 21 माइनस 5 अपॉन 21 माइनस एक्स, एज एक्स माइनस एक्स इज 0। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, मतलब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ का डिनोमिनेटर वहाँ के न्यूमरेटर में चला जाएगा। 4 21 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 16 माइनस एक्स। So 4 into 21 is 84 minus 4 into x is 4x is equals to 5 multiplied by 16 is 8 minus 5x. Now like term साथ में लेते हैं 5x, हाँ माइनस 5x था, इधर आके पॉजिटिव 5x हो गया, माइनस 4x एज इट इज़, 80 इधर ही रहेगा, माइनस 84 इधर आ जाएगा। सो वी हैव 5x में से 4x चला गया, 1x बचा, इक्वल्स टू 80 माइनस 84 माइनस 4 बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस। सो वी हैव दैट नंबर विच शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 3 शुड, तो जो हम लोग को रिजल्टेंट मिलेगा उसका जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा, तो दैट नंबर इज आर -4। देयरफॉर -4 शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 12 16 एंड 21 सो दैट द रिजल्टेंट numbers in continued proportion. Now question number 2, if 28 minus x is the mean proportion of 23 minus x and 19 minus x and find the value of x. सही, अब यहाँ पर क्या बताया, मीन प्रोपोर्शनल। तो 28 माइनस एक्स क्या हम लोग का मीन प्रोपोर्शनल है। तो मीन प्रोपोर्शनल, तो देखो पहले मैंने बताई थी यहाँ पर इसमें दैट b इज़ द मीन प्रोपोर्शन। तो पहला वाला जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में होता है, राइट। तो जो स्क्वायर में होता है वो क्या होता है, 2 बार लिखा हुआ होता है। तो इट मीन्स दैट ये जो हम लोग का 28 माइनस एक्स रहेगा वो ऐसा रहेगा जो साथ में कनेक्टेड रहेगा, कंटिन्यूड में रहेगा। So let's see 28 minus x is the mean proportion of 23 minus x and 19 minus x, which is given information. So how can we write this? 23 minus x upon 28 minus x equals to 28 minus x upon 19 minus x. Now by dividend हम लोग को क्या कैसे भी कैंसिल करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। सी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो डिविडेंड अप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, सो 23 माइनस एक्स करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाती है। सो 23 माइनस एक्स माइनस 28 प्लस एक्स, 28 माइनस एक्स माइनस 19 एक्स माइनस 19 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, सो सेम चलेंगे। देन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, सो वी हैव माइनस 5 अपॉन 28 माइनस एक्स, 9 अपॉन 19 माइनस एक्स। सो -5 ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर के ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो नाउ -5 19 माइनस 6, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 95, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो -5x, 9 इंटू 28 इज़ 252, माइनस एज इट इज़ 9 इंटू एक्स इज़ 9x, लाइक टर्म्स एक साथ 5x माइनस 9x इधर आएगा प्लस 9x, 252 के साथ ये माइनस 95 आ जाएगा तो प्लस 95 हो जाएगा इधर। देन 5x प्लस 9x इज़ नथिंग बट 14x इज इक्वल्स टू 252 प्लस 95 इज़ 347। सो x विल बी इक्वल टू 347, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो 347 अपॉन 14, सो वी गॉट वैल्यू ऑफ x इज 347 अपॉन 14. Now question number 3. 3 numbers are in continued proportion whose mean proportion is 12 and the sum of the remaining 2 number is 26. Then find this number solution. अभी जो मीन proportion की बात किया गया, मीन proportion का नंबर 12 है और जो रिमेनिंग 2 नंबर है उसका एडिशन मीन्स सम वो कितना है 26 है। तो हम लोग को तीनों नंबर तो नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, देन फाइंड दिस नंबर, हम लोग को नंबर्स फाइंड करना है। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सबसे पहले हम लोग पहला जो नंबर है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मीन प्रोपोर्शनल बोला है। तो 12 इज़ नॉट द प्रॉपर आंसर, सो 12 इज़ द मीन प्रोपोर्शन मीन्स जो बी स्क्वायर वाला टर्म था वो 12 है, मतलब बी इज़ 12। सो लेट द फर्स्ट प्रोपोर्शन विच इज़ ए, विल से लेट द नंबर फर्स्ट नंबर बी एक्स, ए भी लिख सकते हैं नो डाउट, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्या रहेगा हम लोग का, क्योंकि इनका एडिशन 26 है। सी सपोज पहला टर्म हम लोग का ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ठीक है। तो ये बी है, बी की वैल्यू तो हम लोग को दे दिया है 12, राइट। और वो कह रहा है ए प्लस सी जो है वो हम लोग का कितना है 26 है। अब यहाँ पर ए को हम लोग ने बोल दिए एक्स,
तो x प्लस 6 जो है वो क्या कह रहा है 26 है, x प्लस सी, सॉरी 6 नहीं, सी। तो सी की वैल्यू क्या रहेंगी हम लोग की 26 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्या आ गया 26 माइनस एक्स, समझा। फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने ले लिया एक्स, थर्ड टर्म हो गया 26 माइनस एक्स, और मिडिल टर्म हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, सो नाउ थर्ड नंबर इज दिस एंड 12 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स। तो 3 टर्म्स हम लोग को मिल गए। पहला वाला x अपॉन मीन प्रोपोर्शनल 12 इज इक्वल्स टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शन वाला आता है 12 अपॉन थर्ड नंबर मिल गया 26 माइनस एक्स। नाउ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x एज इट इज़ 26 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 26x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू की ये साइड आएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 26x माइनस 26x हो जाएगा, और 144 तो यहीं था विच इज़ ऑल इक्वल्स टू 0। नाउ 144, तो 18 8 जा इज़ 144, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, राइट। 144 है तो 144 किससे जाता है 18 8 जा, एज वेल एज 18 प्लस 18 इज़ 26, और माइनस माइनस लगाना पड़ेगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और ग्रेटर नंबर की साइन माइनस होगी, तो अभी ये क्या मिलेगा हम लोग को -26। सो यहाँ पर से कॉमन निकलेगा x विच इज़ x माइनस 18, यहाँ पर एक x बच जाएगा -8, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 18 बिकॉज 8 18 इज़ 144 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x माइनस 18 विल बी इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। तो हम लोग क्या मिलेंगे x की वैल्यू या तो 18 मिलेंगी या तो x की वैल्यू 8 मिलेगी, राइट। तो थर्ड नंबर क्या हो सकता है हम लोग का 26 माइनस एक्स, 26 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 8 हो सकता है, या फिर 26 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 26 माइनस 8 इक्वल्स टू 18 हो सकता है। हम लोग 18 भी सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालेंगे, 8 भी सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालेंगे, बिकॉज ये दोनों वैल्यू x की आई है तो दोनों में से कोई भी हो सकती है। सो देयरफॉर द नंबर्स आर 18 12 8। फर्स्ट नंबर 18 क्योंकि x मिला, सेकेंड नंबर 12 दिया हुआ था, थर्ड नंबर यहाँ पर निकाले 8। या तो अगर हम लोग 8 सब्सटीट्यूट करते x की वैल्यू तो फर्स्ट नंबर 8 मिलेगा, सेकेंड 12 ही था, और थर्ड क्या मिलेगा 18। ओके, सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शो दैट a b c आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अभी हम लोग कंटिन्यूड प्रपोर्शन बताना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेस्ट टू टर्म्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बताना पड़ेगा। सो देन सोल्यूशन, a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गिवन इन्फॉर्मेशन है। सो अभी हम लोग इसमें साथ क्या करेंगे, ये a है मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट प्लस b मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट प्लस c मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर्स है। देन नाउ a इंटू a इज़ a स्क्वायर माइनस a इंटू b इज़ a b प्लस a इंटू c इज़ a c प्लस b इंटू a इज़ a b प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर प्लस 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 बी सी, ये बी सी है करेक्टेड, ये क्या है बी सी है, प्लस ए सी माइनस प्लस ए सी माइनस बी ई नॉट, दिस इज ऑल्सो बी सी है, जहाँ जहाँ बी ई दिख रहा है बी ई नहीं है, ये बी सी है। ओके, प्लस सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन अगेन यह ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी, सो 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया इक्वल्स टू माइनस बी ई प्लस बी ई भी कट गया। ओके, जो बच गया वहाँ पर एडिशन करके लिख दी, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो अगेन ये ए स्क्वायर प्लस इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर 0, माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। ओके, सो वी विल गोइंग टू हैव ये जस्ट 2ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इधर आके 2b स्क्वायर हो गया। नाउ 2 विल गोइंग टू गेट कैंसिल बिकॉज ये मल्टीप्लाई बाय ए सी हो रहा है, इक्वल्स टू के साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो विल गोइंग टू हैव ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन गया, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का यही था रिजल्टेंट। सो देयरफॉर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5th and 6th आर रिड्यूस्ड क्वेश्चन, और 4.4 में भी जो नहीं कराई वो रिड्यूस था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस एट 4.5 ऑल्सो। कंप्लीट योर नोट्स प्रॉपरली, soon I'll going to post time ये portion pattern paper for second unit test. Okay, thank you.